اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا دل نہایت خوشی سے بھرا ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ خداوند کے نام کو کیا کریں جی؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ زوردار تالیاں بجائیں اور ایک دوسرے سے کہیں خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ کہیے ایک دوسرے سے خدا آپ کو برکت دے۔ جسٹ ڈیلیور the blessing، ایک دوسرے کو برکت دیں۔ ہاللیلویا۔ کہیں خدا آپ کو بحال کرے، کہیں خدا آپ کو بحال کرے، کہیں آج کا کلام تیرے لیے ہے، کہیں آج کا کلام میرے لیے ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی جو زندہ آسمان پر آئے، دائنا ہاتھ اٹھا کر کہیے گا، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ باہر والے بھی کہیں، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی جو زندہ آسمان پر اور عبدالآباد زندہ۔ ہاللیلویا۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں آج کے اس وارم اپ میٹنگ کے لیے۔ What a wonderful day! What a beautiful day! وہ لکھا ہے کہ this is the day that the Lord has made۔ یہی وہ دن ہے جو خداوند کا ہے۔ تو اس دن میں چرچ بھی آیا کرو، عبادت بھی کریا کرو۔ بڑا اچھا ہے آپ سب کو دیکھ کر دل خوشی سے بھرا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 8۔ دل تو ہے کہ میں 1 گھنٹے تک جرانا کلام کو ڈیلیور کروں، لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، بھائی بھی پہنچے ہیں۔ میں پاسٹر ذیشان کے لیے، مبشر ہمارے بھائی احتشام کے لیے، بھائی ہیں بڑا اچھا بجاتے ہیں، پلیز اس ساری ٹیم کے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجا دیں۔ چونکہ راستے میں ٹریفک اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، لیکن چونکہ آئے ہیں کہ خدا کے لوگ برکت پائیں، تو میں اس لیے تھوڑا شارٹ بھی کروں گا۔ پھر اور بھی میٹنگز ہیں تو شارٹ ہی ہوئے گا، ٹینشن نہیں لانی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بھائی کو بھی میں چاہتا ہوں موقع دوں، کیونکہ میرا دل سے میری خواہش رہتی ہے کہ جب یہ بھائی کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ان کی میٹنگ تھی اور انہوں نے میٹنگ کینسل کر دی کل۔ انہوں نے کہا ہماری ایک میٹنگ ہے، اپنی بھی میٹنگ ہے، آپ نے کہا تو ہم ضرور دعوت نامہ پر پہنچیں گے۔ پادری صاحب آپ کی محبت کا شکریہ۔ جی آئیں مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کریمہ سے پڑھیں گے۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی، سب کہیں ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی، قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے نہ باندھ سکتا تھا، سب کہیں اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا۔ سب کہیں اس نے زنجیروں کو توڑا تو بھی آزاد نہیں ہوا۔ سنیے گا، اس نے زنجیروں کو توڑا۔ میں آج رکوں گا یہاں پر تھوڑا ٹائم۔ تو بھی آزاد نہ ہوا، لکھا زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکا، اگرچہ اس نے زنجیروں اور بیڑیوں کو توڑا۔ وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال،
क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकल जाओ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। सब कहें। उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वो वहाँ पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा गोल चिढ़ा रहा था, यानी वहाँ चढ़ रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सुवरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो। बस उसने इजाज़त दी और वह नापाक रूहें सुवरों में गई और वो तकरीबन 2000 का खौल था। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सुनिएगा, आजादी, रिहाई, डिलीवरेंस स्पिरिचुअली तौर पर हो, डिमोनिक हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, अगर आप खानदानी तौर पर या शख्सी तौर पर भी डिलीवर होना चाहते, डिलीवरेंस का ताल्लुक खुदा से है। हालेलुया। सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है, आजादी। अगर आजादी पाना चाहते हैं तो आपको सच्चाई पर आना पड़ेगा, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मरकुस की इंजील 5वां बाब अभी हमने तिलावत किया। यूहन्ना 8:32 के अंदर लिखा है, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। एक दूसरे से कहें, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। एक दूसरे नु आंखों नहीं कोई कुछ कहता, कहें सोनिया नु क्या, बाजी नबीला, भाई फरियाद, प्लीज एक दूसरे से कहिए, कहिए, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। रिहाई पाना चाहते हैं, रुपए पैसे की गुर्बत में से यानी लानतों में से निकलना चाहते हैं, डीमन पुरजा से आजाद होना चाहते हैं, आपको सच्चाई पर आना है। जब तक आप सच्चाई पर नहीं आएंगे, जब तक आप ट्रुथ पर नहीं आएंगे, फ्रीडम कभी नहीं आएगा। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको सच्चाई पर आना, और सच्चाई पर आना ये नहीं है कि सच्चाई को सिर्फ पढ़ना, सच्चाई जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। अगर मसला गुनाह है तो मानना पड़ेगा, अगर तलखिया तो तस्लीम करना पड़ेगा, अगर खौफ है तो पहचानना पड़ेगा कि खौफ किस वजह से है, अगर रूहानी बंधन है तो जड़ों तक जाना, रूट्स तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां झूठ है वहां आजादी नहीं, जहां सच्चाई है वहां आजादी है। हालेलुया। वो खानदान हो, वो इनफरादी जिंदगी हो, वो खानदानी जिंदगी हो, वो आपका रुपया पैसा हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपकी रूहानी या फिजिकल जिंदगी हो, सच्चाई पर आना पड़ेगा। मरकुस की इंजील और 5वें बाब की जब 10 आयात 12 आयात जो हमने पढ़ी है, यहाँ पर बड़े वाज़िया तौर से लिखा है कि गरासीनियों का इलाका था जहाँ पर यह शख्स रहता था। अब ये गरासीनियों का जो इलाका, ये गलील के पार था, और यीशु गलील की झील के पार गया गरासीनियों के इलाका में। और ये गरासीनियों का जो इलाका था, ये इसके मगरिब के अंदर जो है वो यहूदी बसते थे, लेकिन इसके मशरकी किनारे की तरफ जो है वो गैर कौम यानी जेंटाइल थे, गैर कौम थे जो बुतों की प्रस्तिश करते थे। अब यीशु चूंकि गरासीनियों के इलाका में गया, और यीशु जो है वो मशरकी किनारे की तरफ गया जहां पर यहूदी नहीं बल्कि गैर कौम है। कौन है जी? कौन है जी? गैर कौमों में यीशु गया।
जो इशारतन यीशु ये बताता है कि मैं सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि बनीनो इंसान के लिए आया हूँ। हालेलुया। वो गैर कौम की तरफ जाता, अगरचे यहूदी गैर कौम की तरफ नहीं जाते थे, अगरचे यहूदियों का ताल्लुक जो है वो गैर कौम और सामरियों, आप समैरिटन्स या गरासीनियों के इलाका के गैर कौमों को देख लें, बिल्कुल इनके साथ उनका उठना बैठना या खाना पीना ममनू था। सुनिए, यूनानी जुबान इस इलाका में बोली जाती थी और यीशु को यूनानी जुबान में भी महारत हासिल थी, वो बोल सकते थे। यानी यीशु तो हर जुबान बोल सकते हैं, लेकिन उस दौर में 3 जुबानें यीशु बोलते रहे फिजिकली तौर पर। उसमें एक यूनानी थी, अरामी थी और इब्रानी थी। ये यूनानी जुबान इस इलाका में आम थी। द लोकल लैंग्वेज ऑफ जो है वो यूनानी थी। सुनिए, इस इलाका में थिएटर थे, बाजार थे, बुत खाने थे और रोमी तर्ज की इमारतें थी, जो बड़ी बड़ी लग्जरी बिल्डिंग्स जो उस इलाका में मौजूद थी। और तिजारत की हब भी समझा जाता था, क्योंकि रोमियों की आप कह लें, रोमी भी गैर कौम थे, उनकी जापनाह थी ये। सुनिए, यीशु खिदमत के लिए यहूदियों से निकलकर गैर कौम में जाता है, इस बात को जाहिर करता है कि यीशु का कंसर्न जो है वो सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं है। अब ये शख्स जो है ये गैर कौम है। अब ये शख्स जो है वो डीमन पोजेस्ड, जकड़ा हुआ। याद रखिए कि ये कब्रों के अंदर रहता, ये जिंदा था मगर जिंदा दुनिया से जुदा था, कट ऑफ हो चुका था। कई एक बार हम में से बहुत सारे लोग जिंदा तो होते हैं लेकिन बहाली जिंदगी के अंदर नहीं होती। We have physically life, वो फिजिकली जी तो रहा था लेकिन स्पिरिचुअली डैमेज हो चुका था। और लिखा है, सांस तो ले रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था इसके बारे में, लिखा है कि वो सांस तो ले रहा था लेकिन अंदर से मर चुका था, सुकून नहीं था, जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। क्योंकि जब से ये शख्स डीमन पोजेस्ड यानी शैतानी कब्जा के अंदर था, इसके अंदर तोड़ फोड़ होना शुरू हो गई। ज़हनी कैद के अंदर था, दिमागी तनाव। अब लश्कर जब आता ना, ये आपको अंदर से तोड़ता। बज़ाहिर तो ये जिस्मानी तौर पर ठीक था, लिखा कि ये डीमन पोजेस्ड लश्कर है इसके अंदर। मैं लश्कर की तफसील में भी अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। ज़हनी कैद, तन्हाई है, जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये शख्स दूर से यीशु को देखता है, फिर उसे सिजदा करता है। कितनी ही तारीकी क्यों ना हो, अगर आप यीशु को देख रहे हैं तो तारीकी जाती रहेगी। हालेलुया। Ever you have darkness, आपकी जिंदगी के अंदर तनाव है, आप ज़हनी डिप्रेशन के अंदर हैं, आप पैनिक हो चुके हैं, आप प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, आपके पास बिजनेस नहीं है, आप बहाल होना चाहते हैं, आप जो है खानदानी तौर पर सताए जा रहे हैं, आप बहाल होना चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, आप किसी भी तरह की मुश्किल के अंदर है, क्राइसिस के अंदर है, आप जिस तरह के माहौल के अंदर है, सुनिएगा, आपको यीशु को देखना है। जिन्होंने यीशु को देखा ईमान से, वो पानियों पर चलते रहे। जिनकी निगाह यीशु पर थी, वो आप जानते हैं बीमारियों से निकलते रहे। उन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को दी। और आज भी जो यीशु को देख लेते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। हालेलुया।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर यीशु को देखना चाहते हैं, आज से पहले आपने अपने दरवाजे बंद किए हैं और आप कहते हैं यीशु मेरे घर में नहीं आता, यीशु मेरी जिंदगी में नहीं आता, अगर आप कंप्रोमाइज कर चुके हैं इब्लीस के साथ, या आप जो है वो शैतानी तस्वीरों में जकड़े हुए हैं, या आपके ख्याल में ये है कि आज तक यीशु ने मेरे घर में विजिट नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किताबे मुकद्दस में लिखा कि वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है और दरवाजा अंदर से खोला जाता है। अगर आज तक इब्लीस ने आपको जकड़े रखा और दरवाजा बंद है, तो वक्त है कि आप यीशु की आवाज सुनकर अपनी जिंदगियों के दरवाजों को खोलें, ताकि वो आपके साथ आपकी जिंदगी में उतरे और रोशनी को पैदा करे। हालेलुया। लिखा है कि वो रोशनी का मंबा है। ऐसा नहीं है कि खुदा से रोशनी ली और आप तक पहुंचा दी। He's not like a mirror कि खुदा से आने वाली रोशनी को जो है वो आगे डिलीवर करे। मैं आपको बताना चाहता हूं किताबे मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह रोशनी का मंबा, यानी उसके अंदर से रोशनी निकलती है। हालेलुया। वो आपकी जिंदगियों को रोशन करना चाहता है। ये शख्स तारीकी के अंदर है, यीशु को दूर से देख लेता है। आप में से हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? अब इसके बाद हम प्रस्तिश भी करेंगे। हाउ मेनी पीपल्स, हाथ 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 नजर आने चाहिए। हाउ मेनी पीपल्स, हम सब यीशु को देखना चाहते हैं। किताबे मुकद्दस में लिखा है इसने दूर से देखा, और जब यीशु को देख लिया, इससे पहले शायद कई अशखास को देखा होगा, कई लोगों को देखा होगा, और लिखा है कि ये जकड़ा हुआ था और कई बार पहले इसने जंजीरों को तोड़ा है, बेड़ियों को तोड़ा है। Many times इसने चेन्स को तोड़ा है। कई एक बार आप भी अपने तौर से आजाद होने के लिए चेन्स तोड़ते हैं, रस्से तोड़वाते हैं कि मैं आजाद होना चाहता हूं, लेकिन आजाद नहीं हो पाते क्योंकि आपके अंदर ज़हनी तनाव है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर डिमोनिक एक्टिविटीज चल रही हैं, आप हसद के अंदर हैं, आप तलखी के अंदर हैं, आप तन्हाई के अंदर हैं, आप अंदरूनी तोड़ फोड़ का शिकार हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाट आई लव, व्हाट आई लव, कैसी मोहब्बत है जो उसने हमसे की है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, अगर आप भी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते रहे, आप रूहानी जंग हार रहे हैं, ये स्पिरिचुअली जो वॉरफेयर है उसको हार रहा है, ये डिमोनिक एक्टिविटीज जो इसके अंदर है इसको हरा रही हैं, लश्कर है, जंजीरें तोड़ी गई हैं, बंधन तोड़े गए हैं। कई एक बार बहुत सारे लोगों को मिला होगा, लोगों ने जो बांधा वो तो खोल लिया, लेकिन शैतान ने जैसे बांधा था वो खुद से ना खोल सका। कई एक बार लोग आपको बांधते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन जब शैतान आपको बांधता है तो आप अगरचे आज़ाद हो, आप बंधे हुए हैं। आपको पता है जंजीरें एक और जगह पर टूटी थी। अमहाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि आधी रात का वक्त था, पौलुस और सिलास कैद खाना में थे, हाथ और पांव बंधे हुए थे, बिल्कुल इसी शख्स की तरह बंधे हुए होंगे, लेकिन किताबे मुकद्दस में लिखा उनके लबों के ऊपर खुदा की तमजीद है, ज़हनी तनाव नहीं है, उनके लबों के ऊपर हमदो सना के गीत हैं, ज़हनी तनाव नहीं है, तन्हाई नहीं है, अंदर तोड़ फोड़ नहीं है, अंदर से इंटरनली स्ट्रांग
स्ट्रांग है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो आधी रात के वक्त ना सिर्फ हमदो सना के गीत गा रहे थे बल्कि दुआ कर रहे थे। और दुआ ये नहीं थी कि खुदावंद मुझे आजाद कर, कि एक बार मुश्किल के अंदर, मुसीबत के अंदर हम इस तरह की दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मुझे आजाद कर। याद रखिए ये भी तोड़ फोड़ है, याद रखिए ये ज़हनी तनाव हो सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगरचे आप मुसीबत के अंदर हैं, अगरचे आप बीमारी के अंदर हो, अगरचे आप कैसे ही हालात के अंदर क्यों ना हो, किताबे मुकद्दस में लिखा है कि शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। इस मकसद के लिए दुआ नहीं कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा, इस मकसद के लिए दुआ नहीं कि जंजीरें टूटे, इस मकसद के लिए दुआ नहीं कि बेड़ियां खुल जाए, इस मकसद के लिए दुआ नहीं कि बुनचाल आए, इस मकसद के लिए दुआ नहीं कि कैद खाना की नींव हिलाई जाए, इस मकसद के लिए दुआ नहीं कि ताले तोड़े जाए, बल्कि इस मकसद के लिए दुआ है, इबादत है, क्योंकि वो इबादत के लायक है। हालेलुया। इसलिए इबादत करनी है क्योंकि वो इबादत के लायक है। आप कैद खाना के अंदर हो, आप मुसीबत के अंदर हो, आप बीमारी के अंदर हो, आप तसीरों के अंदर हो, वो इबादत के लायक है, इसलिए उसकी इबादत करनी है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि वो इस हमें क्या चाहिए, he is able to praise and glory। ये शख्स भी कैद के अंदर, ये दो अशखास भी कैद के अंदर, किताबे मुकद्दस में लिखा ये भी बांधे गए हैं, वो भी बांधा गया है, उसने खुद से तोड़ा है, इनको खोलने के लिए रूहुल कुद्स आया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक रूह आजाद ना करे आप आजाद नहीं हो सकते। ते जेड़े अंदरों आजाद ने ओ ज़ाहरी तौर ते भी आजाद कीते जाने। हालेलुया। ते जेड़े अंदरों बंदे ने वो खुद तो कोशिश भी करते रहन, बहाली नहीं आनी। There is no deliverance if you are trying yourself। अगर आप अपने आप से कोशिश कर रहे हैं कि मैं आजाद हो जाऊं, तो आजाद नहीं हो सकते। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज़हनी तनाव से निकल जाऊं, तो आप खुद से निकल नहीं सकते। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं तन्हाई, लॉनलीपन और इसी तरह से जो है वो अकेलेपन से, लॉनलीनेस, डिप्रेशन, पैनिक, the kind of circumstances about your finance, रुपए पैसा नहीं है, गुर्बत है, मैं बहाल होना चाहना, फलां शख्स आएगा वो मुझे आज़ाद कर देगा, फलां शख्स आएगा वो मुझे आज़ाद कर देगा। शायद कई एक बार आप दूसरों को देखते रहते हैं, लेकिन किताबे मुकद्दस में लिखा है इस शख्स ने यस्सु को देखा तो आज़ाद। sometime कई एक बार हम सिर्फ दूसरों को देखते रहते हैं कि वो मुझे आज़ाद कर सकता है, अकेलापन से, तलखी से, ज़हनी कैद से, तन्हाई से। ये शख्स जिस्म को नुकसान भी पहुंचा रहा था। He was trying to kill himself। कितना को तंग होगा। जिसके अंदर लश्कर होता है वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, वो डिसवैल्यू कर देता है खुदा के मक़दस को। खुद को नुकसान पहुंचाने वाली स्पिरिट्स, ये भी लश्कर का काम है। जब लश्कर आता है ना, अच्छा जी, लश्कर जो है वो रोमी फौज में एक लश्कर तकरीबन 4 से 6 हज़ार सिपाहियों पर मुश्तमिल होता था। लश्कर जब आता है तो खौफ, गुस्सा, लौट, शहवत, तलखी, हसद, गुस्सा, रद्द किए जाने का एहसास, खुद से नफरत, मायूसी, झूठ, गरूर, झगड़ा, बुरा बोलना, ऐब जोई, बहुत सारी चीजें लेकर आता है।
یہ شخص اس طرح کے کنڈیشن کے اندر تھا کہ اس کے اندر 4 سے 6 ہزار اسپرٹ جو ہیں بڑے اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے نوید بھائی کی ایک بات یاد آ رہی ہے. گال بنا سے کچھ سال پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی مجھ سے. انہوں نے کہا کہ ابھی ریسنٹلی جوائن اس آر ایڈمن ٹیم. آئی ریئلی ویلکم ٹو یو بردر ٹو بی آر ایڈمن ٹیم, ٹو بی اے پارٹ آف آر ایڈمن ٹیم. انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی, غور سے سنیے گا. اور وہ بات بنا کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ بھائی پادری صاحب, ایک بدن دے وچ 4000 تو 6000 دا لشکر ہوندا ہے. بڑے سکون نہ بیٹھا سی ایک بدن دے وچ. کنا اتفاق ہوئے گا بدرواں چ؟ تے کہتا ایک گھر دے وچ 4 بندے بہا کے وہاؤ. کہندے چھڈو ایک کمرے چ کوئی 4 پادری بہا کے وہا دو. دروازہ بند کر دیں, 4 پاسٹرز ایک کمرے میں بٹھا دیں. آپ اتفاق دیکھ لیں گے ادھے گھنٹے بعد سر پاٹے ہوں گے. جب تو آدھے گھنٹے تو لیٹ ہو گئے تو اس تو زیادہ کچھ بھی ہو سکتا جی. اس لیے بھائی فریاد 4 کوئی پادری بہا کے بوا بند نہیں کرنا, نہیں تو نقصان ہوگا. افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس کے اندر لشکر ہے, اور لشکر اتفاق میں یونٹی کے اندر ہے. اور جب تک یونٹی نہیں ہوگی, اتفاق نہیں ہوگا, تب تک آپ تجاوز نہیں کر سکتے, آپ تصرف پا نہیں سکتے, آپ جنگ کو جیت نہیں سکتے. یہ شخص کے اندر جو اسپرٹس ہیں وہ نہیں نکل رہے اور زخمی کر رہا ہے اپنے آپ کو. مرکز 5:5 میں لکھا ہے, جب شناخت ٹوٹ جاتی ہے, شناخت کی پہچان نہیں نہ ہوتی, تو زندگی بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم ہیں کون. جب آپ اپنی آئیڈینٹی پر نہیں آئیں گے, اپنی شناخت پر نہیں آئیں گے کہ خدا نے آپ کو شناخت کیا دی ہے, آپ اپنے تائیں زخمی کرنا شروع کر دیں گے. پالوس اور سلاس کے پاس یہی تو تھا. They knows their value. You are a valuable person. آپ اپنے آپ کو ڈس ویلیو نہ کریں. You are a valuable بھائی ایمینوئل. Every spirit, اگر آپ ڈیمن پرجسٹ, آپ کا کوئی خاندان میں ہے, آپ غربت کے اندر ہیں, آپ ذہنی تناؤ کے اندر ہیں, آپ تلخی کے اندر ہیں, آپ بیماری کے اندر ہیں, آپ برے حالات کے اندر ہیں, اپنی شناخت کو سمجھیے, کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا کہ اس نے تمہیں شاہی کائنوں کا فرقہ ٹھہرایا ہے. ہاللیلویا. You are an able person. آپ اس قابل ہیں. The value of spirit. ایک روح کی, one spirit had a value in Jesus. جس روح کے لیے یسوع نے صلیب پر جان دی ہے, اسے معمولی سمجھنا روحانی اندھاپن ہے. خون انتہائی قیمتی ہے جو ایک روح کے لیے بہا. The Jesus Christ just went for one spirit. ایک روح کے لیے جو ڈیمن پرجسٹ. یسوع گراسینیوں کے علاقہ میں اتر گیا, قبرستان میں اتر گیا تاکہ وہ روح بچائی جائے. ویلیو آف ون اسپرٹ. آپ کی شناخت ٹوٹے گی تو آپ ٹوٹ جائیں گے. آپ اپنی شناخت کو نہیں پہچانیں گے, آپ یسوع کی قیمت کو, جو خون کی قیمت ہے, نہیں پہچان پائیں گے. آپ کی شناخت تک آپ نہیں پہنچیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے معیار تک نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ کی شناخت نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں یسوع کا خون کتنا قیمتی ہے, یسوع کیوں مرا, کیوں دفن ہوا, اور کیوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. سنیے گا, میں نے پچھلے دنوں بھی اس پر بات کی تھی کہ یسوع کا مرنا فرق کام کرتا اور اس کا جی اٹھنا فرق کام کرتا.
कुछ ने मरने से पहले कह दिया था तमाम हुआ। जब सारा काम मुकम्मल हो चुका था तो वो कहकर जान दे दी, अपनी रूह सौंप दी। तो फिर जी उठना क्यों जरूरत था? काम तो मरने से मुकम्मल हो चुका था। जी उठना अलग काम करता। सुनिएगा, जस्ट कम टू योर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त पर आ जाएं, अपनी शनाख्त पर आ जाएं। लोग इस शख्स को छोड़ चुके थे, यीशु ने उसे तलाश कर लिया। दिस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। लिखा है अगर एक खो जाए तो वो 99 छोड़कर एक के पीछे जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा क्या करता, उसके हाथ में स्टिक होती थी और वो रात को भेड़ों को इकट्ठा करते थे। और इकट्ठा करने से पहले उनकी काउंटिंग की जाती थी। और जब चरवाहे काउंटिंग करते थे ना, जब उनकी एक भी भेड़ खो जाती थी ना, तो वो उसको ढूंढने के लिए 99 को छोड़कर चले जाते थे। जस्ट गिव देयर योर टाइम टू लॉस स्पिरिट्स। वो जो खोई हुई भेड़ें, रूहें हैं, उनके लिए खुदा ने आपको भेजा, उनके लिए खुदा ने आपको भेजा। यीशु खुद भी गया। जी, ग्रेस ऑफ गॉड, ये फजल है खुदा का कि आप जिस भी हालात में हैं, यीशु आपकी जिंदगी में उतरना चाहता है। बहाली जज्बात से नहीं, इख्तियार से आती है। सुनिएगा, जज्बात में ये शख्स था और he was trying to just lose himself। वो अपने आप को आजाद करना चाह रहा था, वो फ्रीडम चाहता था, अंदर से जंग को हार रहा था। आप भी शायद खानदानी तौर पर, इनफरादी तौर पर जंग को हार रहे हैं अंदर से। पौलुस और सिलास अंदर से जीत चुके थे। सुनिएगा, जब आप अंदर से जंग हार जाते हैं ना, तो आप ज़ाहरी तौर पर भी हार जाते हैं। और जो जंग अंदर चल रही है, जब आप इसको जीत जाएंगे ना, तो आप ज़ाहरी तौर पर भी जंग को जीत जाएंगे। वॉरफेयर इन योर माइंड। लिखा है इब्लीस आपके दिमागों के अंदर किले बना देता है, ऐसे किले जो ढाए नहीं जा सकते। आप उनमें खो जाते हैं। ऐसे ख्याल, एक ख्याल आया, दूसरा ख्याल आया, ये वो ओ ये करते 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 आप फंसते जाते हैं और आप कला के अंदर फंस जाते हैं। What a blessed time। इसको सिर्फ आज़ाद नहीं किया। अगर आप आज़ाद हो चुके हैं या आज़ाद होना चाहते हैं, तो सुनिएगा, ये शख्स जो बदरूहों के अंदर है, ये शख्स जिसके अंदर लश्कर है, ये शख्स जो इलाका के लिए मुसीबत का बायस है, ये शख्स जो इलाके के लिए नुकसान का बायस है, ये शख्स जो जिंदों की दुनिया से अलग होकर मुर्दों के साथ जिंदगी जी रहा है, जब ये शख्स यीशु को मिलता है तो ये इलाके के लिए नुकसान नहीं बल्कि गवाही का सबब बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु से मिलते हैं तो मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं है, मकसद खिदमत है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आज़ादी पर आ जाएं और आप बैठ जाएं। He didn't just sit it down at his home। अपने घर में जाकर बैठा नहीं है। आप इससे बहुत सारे लोग यही तो करते हैं। Just win the souls। He went to the गरासीनियों के इलाका में गया और वहाँ पर जाकर इसने क्या किया, इलाका में जाकर बताने लगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि सुवरों में क्यों भेजा और उसमें क्या था। सुवर जो है वो गैर कौम पालते, तो इस बात की अलामत है कि ये इलाका मशरकी इलाका है। जी, बहाली शोर मचाने से नहीं आती बल्कि इख्तियार को इस्तेमाल करने से आती है जो आपको यीशु ने दिया। शोर तो ये शख्स बड़ा मचा रहा था। यीशु के बगैर जो शोर मचा रहा था वो अपनी आज़ादी के लिए था। यीशु के बाद जो शोर मचा रहा है वो दूसरों की आज़ादी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जस्ट ओपन योर माउथ फॉर डिलीवरेंस। बहाली के लिए लबों को खोलें, जकड़ने के लिए नहीं। Sometime you open your mouth। समझ आ गई मैंने?
Sometime you open your mouth for captive someone. आप किसी को कैद करने के लिए लब खोलते हैं, किसी को बांधने के लिए, लेकिन लिखा है कि आपके लब खुलें, आप इलाकों में जाओ तो आप इस शख्स की तरह जो गरासीनियों के इलाका में है, लिखा है कि इस शख्स की तरह जब आप जाएं तो आप बहाली का काम करें, आप तरक्की का काम करें। बहाली सिर्फ शोर मचाने या बोलने से नहीं आती, इख्तियार का इस्तेमाल करने से आती है जो यीशु ने आपको दिया। हकीकी बहाली ये नहीं है कि दुश्मन इब्लीस ने आपको छोड़ा और वो चला गया, बल्कि इसके बरक्स ये है कि आप खुदा की हजूरी में कितना बढ़ रहे हैं। कई दफ़ा हम ये कहते हैं बदरुआ निकल जान भाजी बहाल हो जावांगे। They don't want to be enter in the presence of God. बहाली सिर्फ बदरूहों के निकलने से नहीं है। बदरूहा निकले तो खाली, बहाली अपने आप को खुदा से भरने से है। हालेलुया, खुदा के कलाम से भरने से। आए कदमों पर खड़े हो।